اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، جس بافضیلت مہینے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اسے ماہ رجب المرجب کہا جاتا ہے. ماہ رجب وہ پربرکت مہینہ ہے کہ قرآن مجید، احادیث پیغمبر اکرم، فرامین معصومین علیہ السلام اور اقوال علماء میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. تو آئیے ان مختصر سے لمحات میں ماہ رجب المرجب کی فضیلت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے. خداوند متعال سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک یقیناً 12 مہینے ہیں. جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. رجب المرجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو حرام مہینے کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا، قتال کرنا حرام تھا. یہ ایسا عظمت والا اور بافضیلت مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے اور اس مہینے میں جنگ و قتال سے پرہیز کرتے تھے. ماہ رجب خداوند متعال کا برگزیدہ مہینہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں میں سے 3 مہینے خداوند متعال کے برگزیدہ اور چنے ہوئے مہینے ہیں. ایک ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان المبارک. ماہ رجب خدا تک پہنچنے کا مہینہ ہے. خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رجب میرے اور میرے بندوں کے درمیان ایک رسی ہے، پس جس نے بھی اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو وہ مجھ تک پہنچ گیا. یعنی جو بھی بندہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو ماہ رجب خدا تک پہنچنے کا ایک بہترین وسیلہ اور طریقہ ہے. ماہ رجب امیر المومنین علی علیہ السلام کا مہینہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں، رمضان خداوند متعال کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر اکرم کا مہینہ ہے اور رجب میرا مہینہ ہے. ماہ رجب دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے. خداوند متعال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رجب میرا مہینہ، بندہ میرا بندہ، رحمت میری رحمت ہے. اس مہینے میں جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں اور جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی حاجت پوری کرتا ہوں. آئیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں لاکھوں دعائیں مانگتے ہیں، ہر روز ہزاروں دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو خدا کہتا ہے کہ آؤ، میں نے تمہارے درمیان ایک مہینہ رکھا ہوا ہے جسے رجب کہا جاتا ہے. رجب ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جو بھی مجھ سے حاجت طلب کرتا ہے میں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں. اگر آپ کو اپنی حاجت روائی کروانی ہے اور دعائیں قبول کروانی ہے تو ماہ رجب ایک سنہری موقع اور بہترین فرصت ہے. ماہ رجب رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رجب کو اسب کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی جن مہینوں میں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے ایک ماہ رجب ہے. یہ ماہ رجب خدا کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس مہینے میں نازل ہونے والی نعمتوں اور رحمتوں کو ہم نے کیسے سمیٹنا ہے. ماہ رجب فرشتوں سے ملاقات کا مہینہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو بھی اس رات شب بیداری کرے اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے تو خدا اس کے جسم کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے اور 1000 فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور 1000 فرشتے اگلے سال اسی دن تک اس کے حق میں استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی فرشتوں کے مصافحہ اور اس کے استغفار اگر کسی انسان کو درکار ہے تو وہ ماہ رجب میں جا کر شب بیداری کرے اور عبادت میں مشغول رہے. ماہ رجب میں عبادت کرنے اور شب بیداری کرنے کا صلہ خداوند متعال یہ دیتا ہے کہ ہزاروں فرشتے آسمان سے نازل ہو کر اس شخص کی زیارت کرتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور وہ عبادت میں مشغول رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. ماہ رجب گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں نیکیاں 2 برابر ہو جاتی ہیں اور گناہ اس میں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم نے اپنی نیکیوں کو 2 برابر کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں 1 نیکی کے بدلے میں 2 نیکیوں کا ثواب دے اور ہمارے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں ان کو خدا محو کر دے اور وہ ختم ہو جائیں، تو ماہ رجب نیکیوں کو دگنا کرنے اور گناہوں کو بخشوانے کا ایک بہترین سنہری موقع ہے. ماہ رجب جنت میں جانے کا مہینہ ہے.
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहिश्त में एक ऐसा कसर यानी एक ऐसा महल है जिसमें सिवाय रजब में रोज़ा रखने वालों के कोई और दाखिल नहीं हो सकता। यानी जहाँ जन्नत के अंदर लाखों हज़ारों महलात मौजूद हैं, वहाँ पर एक ऐसा महल है, एक ऐसा कसर बना हुआ है कि जिसमें के अंदर सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकते हैं जिन लोगों ने माह रजब और रजब में रोज़े रखे हों। माह रजब अज़ाब कब्र से निजात का महीना है। सौबान साहबी रवायत करते हैं कि एक मरतबा हम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी कब्रस्तान से गुज़र रहे थे कि चलते चलते पैगम्बर अकरम रुके और फिर चलना शुरू कर दिया, फिर रुके और फिर चलना शुरू कर दिया। तो हमने अर्ज़ किया, बे अबी अंत व उम्मी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इन कब्रों के दरमियान आपके रुकने का सबब क्या है? यह सुनकर पैगम्बर अकरम ने गिरिया फरमाया। पैगम्बर को देखकर हमने भी गिरिया किया। इसके बाद पैगम्बर ने फरमाया कि इन कब्रों के अंदर जो मुर्दे मौजूद हैं, खुदावंद मुताल ने उन पर आज़ाब किया है, उनकी चीखें मैंने सुनी हैं और उनकी चीखों के सबब से मैंने ये गिरिया किया है और यहाँ पर रुककर उनके लिए दुआ की है कि परवरदिगारा इनके आज़ाब में कमी फरमा, और खुदा ने मेरी दुआ को कबूल किया है और उनके आज़ाब को कम फरमाया है। फिर पैगम्बर ने फरमाया, अगर इन लोगों ने माह रजब में रोज़े रखे होते और इबादत की होती तो खुदा हरगज़ इनको अज़ाब में मुब्तला न करता। रावी कहता है, या रसूल अल्लाह, क्या वाक़अन अगर कोई बंदा माह रजब में रोज़े रखे और इबादत अंजाम दे तो खुदा उसको अज़ाब कब्र से निजात देता है? पैगम्बर ने फरमाया, हाँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, माह रजब एक ऐसा महीना है कि अगर हम चाहते हैं अज़ाब कब्र और कब्र की मुसीबतों से महफूज रहे तो उसके लिए एक बेहतरीन वसीला माह रजब है। माह रजब के रोज़े इंसान को अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं। माह रजब रोज़े रखने का महीना है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स रजब में पहले 3 दिन रोज़े रखे तो जिस दिन वो खुदा से मुलाकात करेगा खुदा उससे राज़ी होगा और खुदा उसे भी राज़ी करेगा और उससे हक़दारों को भी उस दिन उससे राज़ी करेगा। और वो शख्स जो इस महीने में 7 दिन रोज़े रखे, मौत के वक्त उसकी रूह के लिए आसमान के 7 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे यहाँ तक कि वह मलकूत आला तक पहुँच जाए। और जो शख्स 8 दिन रोज़े रखे, बहिश्त के 8 दरवाज़े उस पर खोल दिए जाएंगे। और जो शख्स 15 दिन रोज़े रखे, खुदा उसकी हाजत को पूरा करेगा, मगर ये कि उसकी हाजत गुनाह और कतरामी के हवाले से हो। और जो शख्स रजब का पूरा महीना रोज़े रखे तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, गोया कि वो ताज़ा पैदा हुआ हो, और जहन्नम की आग से निजात मिलेगी और बहिश्त में नेक लोगों का हमनशीन होगा। ये माह रजब है कि जिसमें रोज़ा रखने की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है कि इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं, इंसान के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। माह रजब बरकतों का महीना है। हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, रजब, शाबान और रमज़ानुल मुबारक के 3 महीनों में बेशुमार बरकतें इंसान को नसीब होती हैं, बेशर्ती के कोई उनसे बहरामंद हो सके। यानी ये बरकतों का महीना है और इंसान पर बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, लेकिन इंसान अगर कोशिश करे उन बरकतों को हासिल करने की तो उसे वो बरकत ज़रूर हासिल हो जाती हैं। माह रजब दुआ और तवस्सुल का महीना है। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह खामनई फरमाते हैं, माह रजब एक सुनहरी मौका है। ये दुआ का महीना है, तवस्सुल का महीना है, तवज्जो का महीना है, इस्तिग़फ़ार का महीना है। यानी जो शख्स भी जी भर कर इस्तिग़फ़ार करना चाहता है और अपनी दुआएं मांगना चाहता है तो उसके लिए माह रजब एक बेहतरीन सुनहरी मौका है। माह रजब मशहूर व मारूफ़ महीना है। आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी फरमाते हैं, माह रजब एक हुर्मत वाला महीना है और दुआ का महीना है। यह महीना जाहिलियत के ज़माने में भी इसी चीज़ के लिए मशहूर था। उस दौर के लोग भी इस माह का इंतज़ार करते थे ताकि इसमें दुआ करें। यानी माह रजब वो महीना है कि जिसके में दुआएं कबूल होने के सिलसिले में हत्ता के ज़माने जाहिलियत के लोगों को भी इंतज़ार रहता था कि माह रजब आए और हम उसमें अपनी दुआएं मांगें और खुदा हमारी दुआओं को कबूल करे। तो यानी यहीं से ये पता चलता है कि माह रजबुल मुरज्जब वो महीना है कि जिसमें मांगी हुई दुआओं को खुदा रद्द नहीं करता। लिहाजा अगर कोई इंसान अपनी दुआओं को और अपनी हाजतों को पाना चाहता है और अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहता है तो उसके लिए माह रजब एक बेहतरीन सुनहरी मौका है। इसमें दुआएं मांगे अपने लिए भी और तमाम मोमिनीन व मोमिनात के लिए भी, क्योंकि खुदावंद मुतआल इस महीने में दुआओं को पूरा करता है। माह रजब पुरबरकत महीना है। आयतुल्लाह जवादी आमली इरशाद फरमाते हैं, रजब का
पुरबरकत महीना दरपेश है। जिस कदर हो सके माह रजब में रोज़ा रखें। ख़ास कर वो लोग जो जवानी की ताकत रखते हैं, वो अय्याम एतकाफ़ और यौम बअसत के रोज़ों को फरामोश न करें। यानी माह रजब उन लोगों के लिए कि जो रोज़े रख सकते हैं और इबादत अंजाम दे सकते हैं, एक बेहतरीन मौका है। माह रजब जहन्नम के दरवाज़े बंद होने का महीना है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं, माह रजब के पहले 7 दिन के रोज़े जहन्नम के 7 दरवाज़ों के बंद हो जाने का बायस बनते हैं। यानी जो जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं, अगर कोई बंदा माह रजब के पहले 7 दिनों में रोज़ा रखे तो खुदावंद मुताल उन 7 रोज़ों की बरकत से और उन 7 रोज़ों के एवज़ में वो जहन्नम के 7 दरवाज़े उस इंसान पर बंद फरमा देता है। माह रजब ज़रूरतमंदों की हाजत रवाई का महीना है। आयतुल्लाह शुबैरी ज़ंजानी फरमाते हैं, जैसा कि रवायात से मालूम होता है, माह रजब में आमाल खैर का सवाब बहुत ज़्यादा है। बस बेहतर है कि इंसान इस माह में एक इबादत का इंतखाब करे जो तमाम इबादतों से अफजल है। एक इबादत के जिसकी अंजाम दही पर हमारी तशवीक़ की गई है, वो ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी करना है। माह रजब में तमाम आमाल से अफजल अमल यह है कि इंसान देखे कि उसके इर्द गिर्द जो हाजतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, उनकी हाजत रवाई करे। जिसकी जो ज़रूरत है अपनी इस्तिताअत और कुदरत के मुताबिक उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करे। ये अमल माह रजब में अंजाम दिया जाए तो ये माह रजब के आमाल में से बेहतरीन और अफजल तरीन अमल है। माह रजब कारवान हुसैनी में शामिल होने का महीना है। आयतुल्लाह मीर बाकरी फरमाते हैं, माह रजब के इब्तदाई दिनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शुरू करें। आप खुदा के हुजूर में इंसानियत और अखलाक का बेमिसाल नमूना हैं। इन दिनों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारवान में शामिल हो जाएं और अपने दिन का आगाज़ उनकी याद से करें। आप तमाम बशरियत के लिए नमूना हैं। इस तरह रिवायात में आया है कि इन दिनों का एक बेहतरीन अमल सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ना है। यानी जो शख्स ये चाहता है कि कारवान हुसैनी में शामिल हो जाए तो उसे चाहिए कि माह रजब में जितना हो सके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल करे। जिस कदर वो इमाम आली मकाम के साथ तवस्सुल करेगा और उनके करीब होता चला जाएगा, उसी कदर वो कारवान हुसैनी में शरीक होता चला जाएगा। इस मुख्तसर से बयान आयत कुरान मजीद, अहादीस पैगम्बर अकरम, फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम और अक़वाल उलमा की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो जाती है, माह रजबुल मुरज्जब कोई मामूली महीना नहीं है, बल्कि ये वो बाफ़ज़ीलत और पुरबरकत महीना है कि खुदावंद मुताल ने और आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने, रोज़े रखने, खुदावंद मुताल से तलब हाजत करने और इस्तिग़फ़ार करने की हमको हिदायत फरमाई है। आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल अपने हबीब के सदक़े में हम सबको इस माह रजबुल मुरज्जब से बेहतरीन अंदाज में इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिग